Hello students, good evening. Here I am making video on voice, active to passive voice, and I would try to explain in a very simple way. I'll tell you that how can you remember thumb rules from active to passive, and very easily you can be able to make change the voice, right? So let us start. Here I have written the rules and all. So let me explain you. That's a voice, right? Active to passive voice, right? Voice is there are two types of voice, active voice and passive voice, right? Now, active voice, okay? So for active voice, what is important is that we have to remember the for this a formula. This is active voice and this the formula. These are the change and this is passive voice. This is the formula of passive voice. So I'll make it again, right? And these are the thumb rules. Number one, subject and verb, subject and object. First of all, we have to exchange the positions of subject and object. Number two, to be one of the eight forms. These are the eight forms are given. So we have to use helping verb or to be verb. And number three is main verb, third form of main verb. So these two rules are very important, right? These two rules are very important, to be and third form of main verb. Fourth and fifth one is not very much important sometime because it is sometime drops. But I have written here that suppose if you use subject here and if you use pronoun, so it that's a one thing you have to remember, that pronoun will be changed from subject to object, right? So that should be taken care. That's a subject to objective pronoun. What are they? I'm going to tell you. So let me revise once more. This is the voice, right? There are two top type of voice, active and passive. For active, it's a informal, passive is formal, right? And as far as structure is concerned, so that is the structure of active voices, subject, verb, and subject, verb, and object, right? And for passive, this is the subject, verb, and object, and this is object plus be form. To be form means helping verb, then third form of main verb, then fourth one is by, and then the subject. The same thumb rules I have written here. So the what are they? Let us see. That's a uh, this is these are the thumb rules. One, two. Okay, wait a minute. Okay, so now this is the thumb rule. 1, 2, 3, 4, 5. But here 2 and 3 is very important. So I'll explain you in detail. Now just keep in mind that's a B form. B form is MR was were. So let me explain you this way. That's a yeah. These are the B forms. Okay. So here B form is BE, being, been, then is MR was were, right? Is MR was were. These eight are called B form. Okay, so let me tell you. In next slide I tell you. Okay. So this is voice. If you remember voice, I told you voice, you just have to remember the subject, verb, or object. This is active voice. Here this is structure. You have to keep in mind active voice.
And for passive voice, object, it comes here and subject will go. First of all, this is the first condition. Then you have to use to be verb, right? Then third form of main verb, then by. So rules are what? Rules are number one, this one, number one, then number two, number three, number four, right? Number five in this case, I tell you how. First of all, please note down the be form of the verb. So there are, first of all, three be forms of the verb, that is be itself, be, then been, and then being, right? So this is the be, right? So I tell you how. So here that's a be, right? This is be, being, been. Okay, number two is 1, 2, 3, 4, 5. These are the is, am, are, was, or were. These 8 forms are called, what are 8 forms? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or 8. These 8 forms are called to be form. Please remember, very useful, right? Now come to the uh, rule. So first rule is First rule is subject and object. Change the place of subject and object. Number two, this is the first rule. Number two, that is to be form. How many to be forms? 8 forms are there. So you just have to use one to be form. Number three, third form of main verb. Number four, by, and number five, subject and object. So the if pronoun is subject start with pronoun, then you have to change the pronoun. अब मैं इसको हिंदी में भी बता देती हूँ. देखो, ये क्या है? ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का. और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? हम पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर टू बी फॉर्म लगाते हैं. वही जो हमने अभी 8 वर्ब फॉर्म डिस्कस की, उसमें से एक हमेशा लेना है. थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लेना है, राइट? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. और उसके बाद इसको ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, है ना? और उसके बाद बाय, और उसके बाद अगर यहाँ प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन की जगह ऑब्जेक्टिव कैसे होगा वो बताती हूँ अभी. एक बात और याद रखिए कि प्रोनाउन याद रखना कि अगर प्रोनाउन क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ना? इसको याद रखने के लिए आप सबसे अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ आपको कैसे याद रखो. सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए आपको यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट? तो यहाँ पे ये याद रखो कि यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है, और वो है नंबर, राइट? ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में याद रखो कि कौन सा प्रोनाउन होता है? आई. जो यहाँ सब्जेक्ट में, सॉरी मैंने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया है, तो पी लिख दिया है, ये ऑब्जेक्ट है ना? तो इसको लिखना ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना?
तो ये याद रखना कि ये ऑब्जेक्ट है। नाउ कम टू द पॉइंट। मैं बता रही थी कि आई और वी, या तो सेंटेंस आई से स्टार्ट होता है या वी से या यू से स्टार्ट होता है ना, और नहीं तो स्टार्ट होता है ही से शी से या इट से स्टार्ट होता है, ये सब इसी में आएगा। और फिर यहाँ या तो दे से, इसको मैंने कैसे लिखा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल यू ही होता है, यू का फॉर्म कभी चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है वो क्या है, या तो ही है या शी है या इट है, और प्लूरल क्या है, थर्ड पर्सन दे। अब ये तो कभी भी शुरुआत इन सब्जेक्ट्स इन प्रोनाउन से होती है। नाउन से होती है तो फिर नाउन इज द नेम, नेम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर प्रोनाउन में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वो बता रही हूँ। तो जब ये आए बाद में हम चेंज करते हैं तो ये याद रखना कि ये जो आई है, ये आई बिकम्स मी, ये मी हो जाता है, और ये जो वी है ये अस हो जाता है। यू तो कभी चेंज ही नहीं, यू शुरू में भी रहता है, यू लास्ट में। पर ये जो ही है यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, हिम, हिज नहीं होता, याद रखना। शी क्या हो जाता है, हर हो जाता है। इट तो इट ही रहता है, इट में कोई चेंज नहीं आता है, यहाँ बन नहीं रहा है। और दे का हो जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दे का हो जाता है दैम। ये आपको याद रखना है जब भी अगर आप वॉइस पढ़ रहे हो तो यही मैंने अभी इसमें ये सब बताया है ना। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हमने क्या देखा एक्सरसाइज में कि, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले देखेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है द आर्टिस्ट पेंट्स। आपको पूरा फोकस वर्ब पे डालना है हमेशा। कभी भी कोई लैंग्वेज सीखो, सबसे ज़्यादा वर्ब पे वर्कआउट करो। तो वैसे नॉर्मली हमें क्या करना है, हमको देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या, आर्टिस्ट है, वर्ब क्या है, पेंट है, और पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको सिर्फ रिकॉल करना है कि अभी हमने फर्स्ट रूल क्या देखा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट, ये आप पिक्चर इधर ले आए। अब वो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, जो हमने 8 फॉर्म से याद रखे हैं सेकेंड रूल, उसके हिसाब से आपको इज क्यों सिलेक्ट करना पड़ा वो मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि पेंट्स के कारण, ये पेंट्स में क्या लगा है, इज लगा है, एस लगा है सॉरी, और इसके कारण ये इज आप लगाओगे। 2 कारण है उसके, एक तो पिक्चर सिंगुलर है और दूसरा ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आपने एस लगा दिया। फिर हमने अभी पीछे देखा था, मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि थर्ड रूल क्या है, ये है, हमने अभी इज लिया। थर्ड रूल क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या है इसमें, सॉरी, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब क्या है इसमें, वो है पेंटेड, है ना। और बाय द, ये 4th नंबर पे ये रूल है, और आर्टिस्ट शुरू में था, है ना, तो आर्टिस्ट लास्ट में आ गया। अ पिक्चर इज पेंटेड बाय द आर्टिस्ट। चलो दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है, देखो मैंने बोला था ना, सेंटेंस अगर दे से स्टार्ट होगा तो एंड किससे होगा, देम से होगा। दे देम हो जाता है ना। दे हमेशा शुरू में आएगा, देम हमेशा बाद में आएगा, वर्ब के बाद में आएगा। दे बिल्ड हाउसेस, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या क्या है, दे सब्जेक्ट है, बिल्ड वर्ब है, और हाउसेस ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हाउसेस आ जाएगा इधर, और दे इधर चला जाएगा, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। बीच में आर क्यों लगाया है, आर इसलिए लगाया है क्योंकि बिल्ड के कारण आर लगा है, क्योंकि बिल्ड प्रेजेंट टेंस है, बिल्ड नहीं है, बिल्ड है, तो प्रेजेंट टेंस है, इसीलिए हमने आर लगाया, याद रखना। और फिर हाउसेस ज़्यादा हैं तो प्लूरल है, नहीं तो इज भी लग सकता था। और थर्ड फॉर्म ऑफ ये बिल्ट है, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है, और बाय दैम। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मतलब मुझे लगता है वॉइस तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, पढ़ा करो खूब, बहुत अच्छा
और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वॉइस, है ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही एस लगा है, यहाँ पे ये ई एस लगा है ना। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है आई कुक डिनर, तो डिनर इज, ये इज है कुक के कारण, आई के साथ ऐसे नहीं लगता ना, तो आई कुक्स डिनर नहीं होता, आई कुक डिनर, पर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसीलिए हमने यहाँ प्रेजेंट टेंस की वर्ब ली। लेकिन डिनर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इज ले लिया, तो डिनर इज लुक कुक्ड बाय मी, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वी वी डिलीवर स्पीचेस, है ना। तो वी क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो स्पीचेस पहले आ गया, अब स्पीचेस प्लूरल है और डिलीवर मतलब ये प्रेजेंट टेंस था, तो इसीलिए हमने आर ले लिया, स्पीचेस आर डिलीवर्ड बाय अस, ऐसा, है ना। और भी एक दो एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे अगर मैंने लिखा शी विल रीच दिल्ली टुमारो, शी विल रीच दिल्ली टुमारो, है ना। तो इसमें दिल्ली, शी विल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी मैं दूसरा ले लेती हूँ, नहीं तो ये देखो आपको, शी विल सबमिट सबमिट टुमारो। मैंने कहा आपकी फ्रेंड नहीं आई असाइनमेंट सबमिट करने, तो आपने कहा शी विल सबमिट टुमारो, है ना। तो हमें टुमारो, व्हेन शी कम टू कॉलेज, ऐसा सब कुछ भी हो, हम का हमारा मतलब है सिर्फ तीन चीज़ों से, शी विल सबमिट, है ना, सबमिट इट, सॉरी शी विल सबमिट इट टुमारो, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या क्या कंसर्न है, आर कंसर्न इज दैट, दैट्स अ सब्जेक्ट, है ना, देन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है ना। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, अब इसका बनेगा कैसा, इसका यहाँ पहले इट, यहाँ से टुमारो मारे जो भी लिखा है छोड़ो, हमें बस ये तीन चीज़ों से मतलब है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहले पहले, तो हो जाएगा इट, फिर ये विल और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब वही आठ में से एक बी लगा देंगे यहाँ, सबमिटेड, सबमिट का क्या हो जाएगा, सबमिटेड, और शी का भी हमने देखा था बाय हर, ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, मैं और डिटेल में आपको बताती, पर ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और फिर अभी आज थोड़ा छोटा बना मैंने, और डिटेल एग्जाम्पल मैं बाद में ज़रूर दूंगी। अभी पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। तो कोई भी एडवाइस, सजेशन, ऑर्डर, कमांड जिसमें फेस टू फेस बात होती है, उसमें यू जो है उस वो इम्प्लाइड कहलाता है। इम्प्लाइड मतलब हिडन, यू तो अंडरस्टूड है, इसलिए यू से सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं होता, इसमें हर सब्जेक्ट इसमें यू ही रहता है, तो इसलिए उसको अवॉइड, हर केस में इसमें यू सब्जेक्ट रहता है, क्योंकि आपसे बात हो रही है, जो सामने बैठा है या लोग जो सामने बैठे हैं। तो फिर जब हम तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उसका सब्जेक्ट यू कॉमन है और यू नहीं लिखा जाता, तो उनको इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनके लिए, इम्परेटिव सेंटेंसेस के लिए देर आर सम डिफरेंट रूल फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। क्या है देखो, मान लो, अच्छा ये इंट्रोगेटिव है, ओके सॉरी सॉरी, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन। एक बात और, हाँ इसमें भी समझ लो, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव गेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमेशा दो चीज़ों से बनाया जाता है, या तो डब्ल्यू एच वर्ड्स, जिसका डब्ल्यू एच, या फिर हेल्पिंग वर्ब से, है ना। डब्ल्यू एच वर्ड्स कितने होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, देखो, व्हेन, मैं अभी पूरे नहीं लिख पाऊंगी, बोल दूंगी, आप नोट करना चाहे तो कर ले। व्हेन, वेयर, है ना, हु, हुज, whom, right, which,
whom, which, और इसमें ही हाउ भी आता है, तो आप ऐसे काउंट कर लेना। तो कभी भी सेंटेंस का पहला वर्ड अगर WH वर्ड है तो उसको कहते हैं व्हेन डिड यू कम, राइट, वेयर डू यू लिव, राइट, हाउ विल यू स्पीक, राइट, देन हु इज़ योर मदर, बहुत सारी लेडीज खड़ी हैं तो, राइट, हु इज़ दिस बुक। तो इन सब क्वेश्चन में जब WH से स्टार्ट होता है उनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कहते हैं, क्योंकि इनमें आपको डिस्क्राइब करना है। मैंने बोला व्हेन डिड यू कम, तो आपने कहा आई केम यस्टरडे। मैंने कहा व्हेन डिड वेयर डू यू लिव, तो आपने कहा आई लिव इन इंदौर। मैंने बोला हाउ विल यू हाउ विल यू रीच टू इंदौर, तो आपने कहा बाय बस, आई विल बी कमिंग बाय बस, है ना। फिर ऐसे तो जो भी है वो आपको डिटेल बताना पड़ेगा। परंतु एक और वर्ब है, एक और सेंटेंस बनता है, वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, वो मैं आपको सेपरेटली बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनता है, वही हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब वैसे 24 होते हैं, है ना। तो उसमें से इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, एक तो ये सेट पूरा हो गया। दूसरा सेट होता है अब पूरे ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स होते हैं, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट। ये 8 मॉडल वर्ब्स को भी ऑक्सिलरी कहते हैं। तो ये हो गए 8 और 8 16, है ना। फिर उसके बाद डू, और डू के साथ डू और डिड, है ना। तो ऐसे 17 18। फिर हैज़, हैव, हैड 19 20 21, नीड, डेयर 22 23, और एक कौन सा कोई सा छूट रहा है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है इसमें आपको याद रखो कि कभी भी क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो फिर आपको उसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। कैसे, आर यू कमिंग विद मी, कमिंग विद मी। तो आपको, आपने कहा नो, बस नो डिस्क्रिप्टिव, आपने नो बोल दिया। मैंने बोला विल यू बी अवेलेबल टुमारो, विल यू बी अवेलेबल टुमारो, तो आपने कहा नो और यस, तो इसीलिए इनको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, डिड यू फिनिश योर वर्क, है ना। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, डिड से। डिड यू फिनिश योर वर्क, तो याद रखना कि यहाँ पे ये जो डिड है इसका कन्वर्जन हो जाएगा वॉज, और बाकी रूल काफ़ी कुछ वैसे ही रहेंगे, वॉज। अब क्या करना, अब जो हमने जो रूल पढ़े थे कि योर वर्क है तो वो पहले आ जाएगा, है ना। और फिनिश का फिनिश थर्ड फॉर्म तो लेना ही है, पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं उसको। और बाय यू, है ना, तो बाय यू। आपको ऐसा ना बने अगर इंट्रोगेटिव चेंज करना तो आप उसको सिंपल बनाना। कैसे, सेंटेंस ओरिजिनली है डिड यू फिनिश योर वर्क, है ना, तो आप लिखना अगर इसमें ना, तो डिड यू फिनिश योर वर्क, तो योर वर्क, है ना, इसका बनेगा, इसका बाद में बताऊंगी मैं, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूं। एनीवे, डिड को याद रखो हमेशा वॉज हो जाता है। डिड, योर वर्क इधर आ गया, फिनिश बाय यू, है ना। तो सिंपल है, बाकी रूल्स वही हैं जो हमने पढ़े। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिड की जगह क्या आ जाएगा, डिड की जगह वॉज आ जाएगा, है ना, ये याद रखना। अब कैन दे राइट, कैन दे राइट दिस इन इंग्लिश, तो कैन, है ना, कैन का तो कैन ही रहेगा। दिस इंग्लिश, सॉरी, दिस जो है वो इधर आ जाएगा। अब ये एक नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ बी लगता है। तो अगर सेंटेंस मॉडल वर्ब से बनता है, मैं बता देती हूँ उसको, तो उसमें बी लगता है, बताती हूँ अभी। और राइट का हमेशा पैसिव वॉइस मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म या मेन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक ही बात होती है, वो तो लेना ही है। तो यहाँ तक ठीक है, बाकी इन इंग्लिश तो आपका कोई से हमको फ़र्क ही नहीं। हमको तो बस इतना ये देखना था क्या यहाँ से यहाँ तक चेंज होता है सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस,
वो हमेशा ऑब्जेक्ट तक चेंज होता है। इसमें क्या है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। बाकी एज इट इज़ कुछ भी लिखा हो यहाँ वो सब वैसा का वैसे, हमें बस ये तीन चीज़ें चेंज करना होती है एक्टिव वो पैसिव वॉइस में। तो कैन का तो कैन ही रहेगा, दिस है ना, कैन दिस बी। अब दिस क्लियर नहीं है क्या है, तो कैन दिस बी रिटन, और बाकी इन इंग्लिश वो सेम रहेगा। अच्छा एक बात और, यहाँ बी क्यों लगाया, तो मैं ये बता दूँ आपको कि मॉडल वर्ब्स होती हैं, जो मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, विल, वुड, विल वुड है ना, शेल शुड, शेल शुड, कैन कुड, ठीक है, और मे माइट, माइट, ये याद रखना, इनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं, है ना। तो अब अगर इनमें सेंटेंस से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस में बाय नहीं लगा के बी लगाया जाता है, ये याद रखना, है ना। चलिए फिर लास्ट है एक और, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस वही जो मैंने अभी आपको बताया कि सजेशन, एडवाइस है ना, कमांड, ठीक है। तो इसमें ओपन द डोर बड़ा कॉमन है, और यार ओपन द डोर तो याद रखना कि पैसिव वॉइस इसका लेट से, ये इम्परेटिव सेंटेंसेस चूँकि वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसमें यू सब्जेक्ट ऑलवेज कॉमन रहता है, तो इसीलिए ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होंगे उसको आपको लेट से स्टार्ट करना है। बाकी रूल सेम है, लेट, फिर वही कि पहले आप ऑब्जेक्ट को ले आए पहले, और फिर बी लगाते हैं। इन सेंटेंसेस में बाय नहीं लगाते, बी, और ओपन का क्या हो जाएगा, ओपनड। थर्ड फॉर्म तो लेना ही लेना है। अब जैसे नेक्स्ट वाला देखो, डू योर वर्क, डू योर वर्क, ओके कमांड है डू योर वर्क, तो लेट योर वर्क बी डन। लेट तो लगाना ही है ना, योर वर्क यहीं पर है, पर ये जो डू है ये डन हो जाएगा किसके बाद, बी के बाद। सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो मैं दूसरे एग्जाम्पल बताती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, क्लीन द बाइक, क्लीन द बाइक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, लेट द बाइक बी क्लीन्ड। क्यों, देखो उसका रीज़न है, ये क्लीन से स्टार्ट हुआ है ना, ये क्लीन तो वर्ब है, इसलिए हमने लेट लगा दिया। इसको पहले इधर ले आओ, द बाइक को ये, और बी लगाते हैं मैंने बताया, और क्लीन का क्लीन्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो जैसे मैंने बोला, रीच, रीच द वेन्यू, वेन्यू इमीडिएटली, अरे सॉरी, इमीडिएटली, डिएटली है ना, तो रीच द वेन्यू, तो लेट, इसका आंसर, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा, देखो लेट, अब ये दो द वेन्यू आ जाएगा, लेट द वेन्यू, वेन्यू बी रीच्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली ऐसा होता है। एक और देखो, इसमें नहीं दिया है, एक और ऐसा है, अगर मैंने कहा क्लोज, क्लोज द डोर है ना, और दूसरा मैं कह रही हूँ क्लोज द डोर, ठीक है, और दूसरा है प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर। डिफरेंस ये है कि एक सेंटेंस ऑर्डर है, और एक ये जो सेंटेंस है ये रिक्वेस्ट है। बड़ा सिंपल है दोनों को चेंज करना। क्लोज द डोर देखते हैं पहले, क्लोज द डोर का क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड, बी क्लोज्ड। लेकिन जो प्लीज़ या काइंडली से सेंटेंस कभी भी स्टार्ट होगा ना,
तो आप बस उसके लिए एक चीज़ याद रखो, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़, टू प्लीज़, टू लगा देना बस, टू प्लीज़, सॉरी प्लीज़ नहीं लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर, ऐसा हो जाएगा। एक और देती हूँ, मैं वर्बली समझा रही हूँ, उसको लिख नहीं रही हूँ। मान लो मैंने बोला राइट एन आर्टिकल, राइट, सो लेट एन आर्टिकल बी रिटन, है ना, और मैंने कहा प्लीज़ राइट एन आर्टिकल, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट एन आर्टिकल, ऐसा। मैंने कहा काइंडली कीप क्वाइट, तो काइंडली है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक और नॉट वाला और समझ लो, जैसे कि मैंने बोला डोंट टच इट, डोंट टच इट, और मैंने बोला प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, इसका कैसे बनेगा देखो, इसका बनेगा डोंट टच इट, है ना, तो इसका हो जाएगा लेट इट बी, ये इट आप इधर ले आए, है ना, लेट इट नॉट टू बी टच का टच्ड यहाँ बनेगा नहीं लिखते, पर टच होता है। अब ये तो इसका हो गया। अब अगर प्लीज़ लिखा है तो प्लीज़ के कारण सेंटेंस कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, बस ये याद रखना, नॉट टू डिस्टर्ब मी, ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। चलिए, अब सिंपल क्वेश्चंस है, हु विल कॉल हिम, तो यहाँ याद रखना कि हु की जगह क्या हो जाता है, बाय हुम, है ना। तो इसके आंसर्स ये है, बाय हुम विल ही बी कॉल्ड, कैसे, बाय हुम, यहाँ आपने लिखा बाय हुम, हु को हटा के बाय हुम, विल ही, हिम का वापस लाओगे तो ही बी कॉल्ड, है ना। फिर हैज़ ही इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली, तो हैज़, ये इसका आंसर है, हैज़ ही इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली, हैज़ हिज फैमिली बीन इन्फॉर्म्ड, है ना, क्योंकि हैज़ है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैज़ हिज फैमिली बीन इन्फॉर्म्ड, क्या उसकी फैमिली को बताया गया है ना, ऐसा। तो हैज़ ही इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली, क्या उसने उसकी फैमिली को बताया, या उसकी फैमिली को बताया गया है, ऐसा। अब ये देखो, ये इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है, स्टॉप फायरिंग एट द बॉर्डर, है ना, दोनों इम्परेटिव हैं लास्ट वाले। तो स्टॉप फायरिंग, इसका आ जाएगा लेट द बॉर्डर बी स्टॉप्ड बीइंग फायर्ड एट, है ना। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर फायरिंग है, इसलिए बीइंग आएगा, यहाँ पे क्या है, फायरिंग है ना, तो इसीलिए स्टॉप फायरिंग एट द बॉर्डर, है ना। तो लेट, इसका कैसे हो जाएगा देखो, लेट द बॉर्डर बी स्टॉप फायरिंग, आप इसको देख लेना, है ना, मुझे थोड़ा सा जल्दी हो रही है, पर हाँ, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया, आप सिर्फ ये याद रखो तो आप काफ़ी कुछ कर पाओगे। मैं और वीडियो बनाऊंगी इंट्रोगेटिव और इसमें, पर अभी फ़िलहाल के लिए ये याद रखो कि ये पूरी समरी अगर आप याद कर लोगे अच्छे से तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी। तो समरी याद रखो, है ना, कैसे, कि आपको बस पूरी ये समरी याद रखना है,
अगर ये याद रही तो आप इजीली बना पाओगे। थैंक यू सो मच। बाय। गुड नाइट।